Good morning, students. Today we are going to study a new concept that is PLC, Product Life Cycle. And this concept belongs from the marketing domain. And this chapter is very important with respect to the marketing strategies that we have to carry out in each phase of the product life cycle. And this concept has a lot of practical value. So you must listen to it carefully. So let us start with this chapter. So what is PLC? Product life cycle. Product life cycle is a theory which states that every product has a definite stages, have a particular lifespan, just like living organisms do. Now, you all know that human beings go through different stages. First of all, we have the infant stage, then we go through the adulthood, then we go through the adolescence, and in last, we go through the old age. So, similarly, the products also go through different stages, and वो four stages कौन सी हैं? These are the four stages: introduction, growth, maturity, and decline. But before we study each stage and the characteristics of each stage, let me first tell you the characteristics of this concept that is product life cycle. पहले तो ये जान लो कि हर स्टेज जरूरी नहीं है कि कंपनी के हर प्रोडक्ट का जो स्टेज जा रहा है, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज है, जरूरी नहीं अगर एक प्रोडक्ट का स्टेज 2 मंथ्स रहा है इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ 5 मंथ्स रहा है और मेच्योरिटी 10 साल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी वही ड्यूरेशन रहेगा. सो what I'm trying to say is, first point, please note down that the duration of each phase will not be same for every product. You must know this thing. The duration will not be same. Second point which I'm going to say is that it might be possible कि एक स्टेज ही बीच में से स्किप हो जाए. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. इट कैन बी पॉसिबल दैट इंट्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, मेच्योरिटी कभी हो ही ना और सीधा डिक्लाइन हो. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो इट कैन बी पॉसिबल दैट द firm or a product skips one stage, right? Then the third point you must notice that every stage का अपना impact होएगा on the profits एंड लॉसेस ऑफ द फर्म. हर प्रोडक्ट का अपना एक डेफिनेट इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे, एंड हर फेज का अपना एक अपने डिसीजंस होंगे, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगे. ज़रूरी नहीं कि हर फेज में हम सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ही अपनाएं. सो नहीं तो कंपनी विल गो इनटू लॉसेस. सो ये बात, चार पॉइंट्स जो थे, यू मस्ट नो कि every decision, every phase will have its own marketing decisions. Every phase will have result into rise or fall into profits. They will have different impacts on the profits and losses, and duration of each phase will not be same, right? Please note down these points. It was not written here. Then coming to the first phase, what is introduction phase? Introduction means that the company is for the first time introducing the product into the market, और company का brand name किसी को नहीं पता था. So what is company trying to do is, the company is developing a market for the product, and the company is also trying to create awareness about the product, the basic awareness. Here I am talking about the basic awareness, because the customers are not at all aware about the usefulness and the uniqueness of the product. So इस stage में होगा बहुत heavy expenses. This stage correct this stage is actually characterized with heavy expenses on the development of the product. Please note down this. इस stage में कंपनी को बहुत खर्चा करना पड़ता है. शुरू की बेसिक अवेयरनेस, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स को एडवर्टाइज करती है, प्रमोट करती है. सो शुरू शुरू में द कंपनी हैज टू पे a lot of money for this. Then comes the growth stage. अच्छा, सच एक पॉइंट तो रह गया इंट्रोडक्शन स्टेज में. वैसे तो दिस स्टेज डज नॉट इज नॉट सीन बाय लॉट्स ऑफ सेल्स. ऐसा नहीं होता कि इसका इस स्टेज में ज्यादा सेल्स इज नॉट क्वाइट होगी इस स्टेज में. तो वो सिर्फ अर्ली अडॉप्टर्स या रिस्क टेकर्स होते हैं, जो जिनके पास बहुत पैसा होता है. ज्यादातर वो ही ऐसे अननोन ब्रांड्स भी खरीद लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर एप्पल का आईफोन, अब वो 10th एप्पल 10 तक आ चुका है ना. तो अगर जस्ट इमेजिन, अगर एप्पल का ब्रांड आप लोगों को नहीं पता शुरू शुरू में, कौन इसको परचेज करेगा? सिर्फ ज्यादा जो rich people, they will only buy it. So
only the risk takers या early adopters will buy the product in its introduction phase. ज़्यादातर mostly जो population है, it's a conservative, conservative characteristics होते हैं उनके, so they will only buy when they know about the product well. Then comes the growth stage. In this stage, अब क्योंकि हम काफी खर्चा already कर चुके हैं on the advertisement, कर चुके हैं on the benefits and usefulness of the product, और एक market हम खड़ी कर चुके हैं. So this stage is characterized by rapid market acceptance of the product in terms of faster sales, and you can also say phase में early adopters तो खरीदेंगे ही, and mostly जनता जनार्दन वो भी अब they will begin to purchase the product. And then होगा क्या, इस स्टेज में थोड़ी थोड़ी हमें malicious activities दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, हालांकि उसका इफेक्ट नहीं दिखता इस स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में. नाउ व्हाट इज malicious, यहाँ पर कंपटीशन कहता बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, एंड थोड़ा थोड़ा उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं. दे आर इन द प्रोसेस, बट अभी निकल के नहीं आई होती, तो उसका जो बैड इफेक्ट है अभी हमें नेक्स्ट स्टेज में दिखता होता है, मेच्योरिटी स्टेज में दिखता होता है. बट वो ग्रोथ स्टेज में वो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं. सो इस स्टेज में सबसे ज्यादा हमारी मार्केट हमारी फ्लरिश कर रही होती है. कंपनी अर्न्स लॉट्स ऑन लॉट्स ऑफ रेवेन्यू, एंड कंपनी का मेन फोकस होता है इस वक्त प्रोडक्शन पे, to satisfy the to satisfy the large demand for the product. Then comes the maturity stage. As I said कि अब negative effects इस stage में जाके दिखने start हो जाते हैं, क्योंकि duplicate copies बननी start हो जाती थी, अब वो निकल के आती हैं, and इस stage में competition highest level पे होता है. Sales हमारी बेचारी steady हो जाती हैं, अब इतनी high नहीं है, and इस स्टेज में आपको आपके लिए जो चैलेंज है दैट विल बी कि अब हमने इतने प्रोडक्ट्स बना दिए थे ग्रोथ स्टेज में, तो अब ओवर स्टॉकिंग हो जाती है काफी, एंड ओवर स्टॉकिंग की वजह से नाउ इट इज अ बर्डन टू अस दैट हाउ वी अब इसको हम सेल कैसे करें, इन प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करें. सो इस स्टेज में मोस्टली सप्लाई एक्सीड्स डिमांड. नोट दिस पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, सप्लाई इस स्टेज में ज्यादा होती है एंड डिमांड कम होती है, एंड इतना कंपटीशन हो चुका होता है, डुप्लीकेट कॉपीज हो चुकी होती है, दैट इट इज वेरी हार्ड टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड द डुप्लीकेट प्रोडक्ट. सो अब करना क्या है इस स्टेज में, वैसे तो अभी डिसीजंस में है, मैं बताऊंगी, बट इस स्टेज में द टिप हियर इज कि हम किसी तरह सरवाइव करें मार्केट में. नाउ वी इन ऑर्डर टू सरवाइव इन द मार्केट वी कैन गो फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट. नंबर वन, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाओ ताकि कोई इसकी डुप्लीकेट ना कर पाए और इजीली पहचान में आ जाए कि क्या ओरिजिनल है और क्या डुप्लीकेट है. नंबर टू, we can go for price cutting and discounts, of course if your um, you know um, uh, your budget allows this, then you can go for price cutting and discounts. And the third point what we can do here is, which you can notice, advertising and sales promotion plays a lot significant role, and it helps to um, helps the firm to survive in the market at this peak point. And last but not the least, awareness about the price moves of the competitors, जो कि एक्चुअली में बहुत इरोड कर सकते हैं आपकी मार्केट वैल्यू को, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. इट इज द की पॉइंट, इट्स द की टिप विच आई कैन गिव यू, कि यू हैव टू बी इन सिंक विद द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपको ये, क्योंकि अब एक्चुअली में कंपनी की सैचुरेशन पॉइंट आने ही वाली होती है. So awareness is the only thing which can help you survive in the market at this maturity stage. And अगर आपने proper efforts नहीं करे होंगे maturity में, so eventually the next stage will come which you have to face is decline. So इस stage में this stage is characterized by of course decline in the sales. ठीक है, sales decrease होंगी आपकी. क्यों हो रही हैं? Because consumer के preferences change हो चुके हैं, technological innovations आ चुकी हैं. We all know that typewriters जो हैं वो उनको रिप्लेस कर दिया गया आजकल के कंप्यूटर से. वी ऑल नो दैट लैंडलाइन फोन्स को भी रिप्लेस कर दिया गया सेलुलर फोन से. वी ऑल नो दैट टेलीग्राम्स जो हैं अब शिफ्ट हो गए, चेंज कर दिया उनको, ईमेल्स और मैसेजेस आ गए हैं. ये सारी चीजें क्या हैं? ये न्यू टेक्नोलॉजी है. सो द टिप हियर इज व्हिच आई विल लाइक टू गिव यू इज दैट देयर इज नो पॉइंट टू प्रोलॉन्ग योर स्टे इन द मार्केट. अगर आपको लॉसेस ही झेलने पड़ रहे हैं, then the the tip here is that you can actually, the key to avoid is to realize it as fast as possible. You have to realize it earlier. जितनी जल्दी रियलाइज हो जाएगा आपको, उतने आप अपने लॉसेस बचा लोगे. सो द एग्जिट शुड बी मेड एट द अर्लीस्ट point possible in order to avoid the heavy losses.
एग्जिट शुड बी मेड एट द अर्लीस्ट पॉइंट, अदरवाइज आपको काफी लॉसेस हो सकते हैं। इस दिस स्टेज in this stage the products may be need to be removed from the market, right? And next point है जो मेरे को आपको बताना है कि अब करना क्या है हर स्टेज में। ये तो थे सारे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जो हमने हर स्टेज के बारे में पढ़े। अब हर स्टेज हमसे क्या क्या चीजें रिक्वायर करती हैं, सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज क्या हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट देम। सो ये आपको तो पता ही है कि मार्केटिंग डिसीजंस जो होते हैं, व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट। ये 4 P's का मतलब है वो 4 एरियाज जो हर मार्केटर को कंसिडर करने चाहिए इन एवरी फेज। सो लेट अस कंसिडर प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्टेजेस में हमें क्या करना है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में प्राइजेस आप कैसे रखोगे, हाई रखोगे कि लो रखोगे? सो देखा जाता है तो सबसे पहले आपने इतने डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस करे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। सो इन ऑर्डर टू रिकवर दोज डेवलपमेंटल कॉस्ट अक्सर कंपनी शुरू शुरू में अपने प्राइजेस हाई रखती है, ताकि उन अर्ली अडॉप्टर्स से उनको जितना मिलना है, अगर वो अपनी प्राइस की सॉरी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट सॉरी प्रोडक्ट की प्राइस हाई भी रख देंगे तो अर्ली अडॉप्टर्स उनको शुरू शुरू में खरीद लेते हैं, उनसे उनका काफी रेवेन्यू कवर हो जाता है। सो दे विल ट्राई टू कीप द प्राइजेस हाई इन द इनिशियल स्टेजेस। इन द ग्रोथ स्टेजेस वो थोड़े से कम कर देंगे अपने प्राइजेस को, जस्ट टू बिकॉज दे एंजॉय वेरी गुड मार्केट पोजीशन। सो और कंपटीशन भी बहुत कम होता है, तो वो अपने प्राइजेस को थोड़ा बहुत लो कर देते हैं ग्रोथ स्टेज में। बट मेच्योरिटी में उनको जबरदस्ती कॉम्पिटिटर्स को देखा देखी उनको लो करना पड़ता है। मैंने आपको अभी बताया था कि उनको प्राइस कट्स डिस्काउंट्स देने ही पड़ते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। उनको अपनी स्पोर्ट सर्विसेज, प्लीज नोट, इसमें मेच्योरिटी में जहाँ लिखा है प्राइसेस स्टेबलाइज, वहां पर मैंने अभी बोला प्राइस कट्स डिस्काउंट्स तो देने ही है, एडिशनल सपोर्ट सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं। ये सब कॉम्पिटिटर्स से बचने के लिए अपने आप को ज्यादा इंप्रूव उनको करना ही पड़ता है, प्राइसेस कम करने ही पड़ते हैं। एंड डिक्लाइन फेज भगवान ना करे कि देखनी पड़े, बट अगर इफ आपने डिसाइड कर ही लिया है कि डिक्लाइन फेज में मुझे किसी तरह आई यू नो मुझे, वैसे तो देखो डिक्लाइन फेज में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि डिक्लाइन फेज आने ही ना दो और उससे पहले ही निकल लो। अगर आपको लग रहा है कि डिक्लाइन में पहुंचने वाले हो तो शुरू शुरू में इनिशियल स्टेज में ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। बट समटाइम्स सम कंपनीज इन द होप ऑफ रिवाइवल of the market, they try to float their companies, they try to float their products, किसी तरह वो औखा समय निकालने की कोशिश करते हैं by finding new uses, अपने अपने प्रोडक्ट्स के डिफरेंट यूजेस निकालने की कोशिश करते हैं by adding new features। सो अगर उनको वे सब कुछ करना ही है तो उस स्टेज में उनको प्राइजेस कम रखने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, कंपटीशन, एंड उनकी अट्रैक्टिवनेस कम हुई होती है, उनका ब्रांड नेम अब पीछे हुआ होता है बिकॉज ऑफ द पास्ट मिस्टेक्स। सो इस वजह से उनको प्राइजेस कम रखनी पड़ती है। देन प्रमोशन स्टेज में सॉरी प्रमोशन डिसीजंस, इंट्रोडक्शन स्टेज में आप कैसे जाएंगे? शुरू शुरू में अगर हमने प्रमोट करना ही है अपने प्रोडक्ट को, तो हमारी प्रमोशन इंट्रोडक्शन स्टेज में किस चीज पे ज्यादा जोर दे रही होती है? प्रमोशन सिर्फ बेसिक अवेयरनेस के लिए होती है। नोट दिस पॉइंट, इन इंट्रोडक्शन फेज प्रमोशन इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग द बेसिक अवेयरनेस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बेनिफिट्स, उसकी यूजेस एंड उसकी यूनिकनेस। ठीक है, जस्ट कंपनी सच पोटेंशियल बायर्स को जस्ट बेसिक अवेयरनेस देनी है। देन इन द ग्रोथ स्टेज हमारी जो प्रमोशन है वो वन स्टेप आगे बढ़ती है एंड हम अपना खर्चा करते हैं कंपटीशन, और कंपटीशन को कम करने के लिए हम ट्राई कि हम बिगर शेयर ले मार्केट का। सो इन ग्रोथ स्टेज हमारा जो प्रमोशन प्रमोशन जो होती है दैट इज basically focusing on getting a bigger share in the market. Then comes the maturity stage. Maturity stage में promotion किस चीज पे ज्यादा focus कर रही होती? On creating the product differentiation. Please note this point that in हमारी जो maturity stage में promotion है that is focusing on product differentiation. Now what is product differentiation? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस कि अपने प्रोडक्ट को किसी तरह दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग दिखाना। क्योंकि अब मैंने बोला था कंपटीशन इतना हाई हो चुका होता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके होते हैं। सो अपने प्रोडक्ट को किसी तरह अलग दिखाना ही इज द की टू सर्वाइव इन दिस पॉइंट। सो दैट इज वाई मेच्योरिटी में सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही हेल्प कर सकती है। एंड देन कम्स द डिक्लाइन स्टेज, हमें प्रमोशन करनी ही नहीं चाहिए।
बेसिकली अपने पैसे यहाँ पर बचाने चाहिए, बिकॉज कंपनी का नेम ब्रांड तो सबको थोड़ा बहुत अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस तो क्रिएट हो ही चुकी होती है. सो दिस स्टेज डज नॉट रिक्वायर प्रमोशन, दिस स्टेज ओनली रिक्वायर्स बेसिक सर्वाइविंग. यहाँ पर सिर्फ प्राइस कट्स चलते हैं, इस स्टेज में प्रमोशन नहीं होती है इतनी. हाँ, हालांकि अगर आपने कुछ न्यू फीचर्स ऐड करे हैं, न्यू वेरिएंट्स ऐड करें, उनकी कर लो. बट अगर प्रोडक्ट के बारे में सबको ऑलरेडी पता है तो बस उसको फ्लोट करना होता है इस वक्त मार्केट में. ठीक है. एंड देन कम्स द प्लेस डिसीजंस. प्लेस डिसीजंस यानी कि इंट्रोडक्शन में अगर हमने बेसिक प्लेस डिसीजन मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या, किस चीज़ पे हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी फोकस्ड होती है, दैट इज़ जस्ट टू गेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हम इस वक्त ले रहे होते हैं. तो हमें अपने यहाँ पर सप्लाई चेन नेटवर्क को बढ़ाना होता है. सो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने अपने सप्लाई चेन नेटवर्क को क्रिएट करने में पैसे खर्चने होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. एंड ग्रोथ स्टेज में हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिक वाला तो हम ले ही चुके होते हैं. तो ग्रोथ स्टेज में वी ऐड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिकॉज हमारी कंपनी की डिमांड बढ़ चुकी होती है एंड द प्रोडक्ट हैज़ गेन्ड एक्सेप्टेंस इन द मार्केट. सो वी ट्राई टू गेट मोर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स. उनके भी हम लाइसेंसेज मतलब उनके भी हम आउटलेट्स लेने की कोशिश करते हैं. मोर आउटलेट्स वी ट्राई टू ओपन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, वी गो फॉर मोर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स. एंड देन प्रमोशन के लिए मैच्योरिटी में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑलरेडी क्योंकि बन चुके होते हैं. नाउ वी ट्राई टू हैव गुड रिलेशन विद देम बाय गिविंग देम डिस्काउंट्स. अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट्स देते हैं, न्यू स्कीम्स देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं. ठीक है. और डिक्लाइन स्टेज में तो बच्चे वी शुड नॉट गो फॉर मोर डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स बिकॉज इट विल ऐड टू द खर्चा, इट विल ऐड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म. सो हम सिर्फ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स लेते हैं इस स्टेज में. ठीक है. एंड लास्ट इज हमारे प्रोडक्ट डिसीजंस. प्रोडक्ट को देखते हुए डिसीजन इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या लेने चाहिए. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट डिसीजंस आर मेनली फोकस. बेसिक हमें अपने वो लेने होते हैं, इसमें पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स लेने होते हैं. ठीक है. क्वालिटी लेवल सर्टिफिकेशन लेने होते हैं. ब्रांडिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर हमारा बेसिक इसमें फोकस होता है. एंड ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे क्या डिसीजंस होते हैं. अब हमने बेसिक तो कर ही लिया होता है. नाउ प्रोडक्ट्स विल बी फोकस्ड, प्रोडक्ट वाली जो सर्विसेज हैं दैट विल बी फोकस्ड ऑन गिविंग एडिशनल फीचर्स एंड एडिशनल सपोर्ट सर्विसेज. इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस्ड होता है. मैच्योरिटी स्टेज में हम प्रोडक्ट को ही थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं बाय एडिंग न्यू वेरिएंट्स. जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करते हैं. सो द कंपनी हियर इज़ ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स, सुपीरियर फीचर्स, एडिंग न्यू वेराइटीज़, एड वेरिएंट्स. ठीक है. कि समहाउ हम डिफ्रेंशिएट कर सके अपने ऑफरिंग्स को फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. एंड लास्ट कम द डिक्लाइन स्टेज. सो यहाँ पर तो मैंने आपको बोला आपको होना ही नहीं चाहिए वैसे तो कंपनी को इस फेज़ में. बट यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, अपने जो ओवर स्टॉक्ड गुड्स हैं उनको बेचने की कोशिश कर रही है. सो कंपनी इज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द प्रोडक्ट बाय यूजिंग ऑल साम दाम दंड भेद. ठीक है. अपने प्राइजेस को भी कम कर देती है वो एंड प्राइस कट्स दे रही है, अपने डिस्काउंट्स दे रही है. ठीक है. अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी डिस्काउंट्स वगैरह दे रही है. तो किसी तरह कंपनी को फ्लोट कर रही है एंड द कंपनी इज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द प्रोडक्ट. सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ एडिंग न्यू वेरिएंट्स इन दिस स्टेज एंड देर इज़ नो पॉइंट इन किसी तरह और खर्चा. कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं करना होता हमने इस स्टेज में कि हमारा खर्चा ऐड हो. नाउ इस वक्त कंपनी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ट्राइंग समथिंग न्यू. सो पहले जो ओल्ड है उसी को निकालना होता है इस स्टेज में. सो द चैलेंज इज़ दैट. सो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए हों. एंड ये हमने आज क्या किया, वी हैव जस्ट स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स एंड वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं हर स्टेज में. कंसिडरिंग सबकी अपनी अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं हर फेज़ के, तो सबके डिसीजंस भी अपने हैं, हर फेज़ के डिसीजंस भी अपने हैं, अलग हैं. सो इन द नेक्स्ट lecture we will go through the advantages of this concept PLC and limitations of PLC. Okay, thank you.